मैडम। वाइस मैं हम लोग कर हाँ जी। मैडम, Mrs. Zakia, wife of Mr. Imran, 27 years of age, married for 8 years, first non-consanguineous marriage of both partners. She had not received any formal education एज and कितनी housewife. बताई आपने? I'm एज 27. ठीक है। My patient did not receive any formal education and housewife. Her blood group is A positive. She is para-1 abortion 0. Last childbirth 6 years back. One baby girl alive and healthy, delivered by spontaneous vaginal delivery. She is resident of Mumtazabad, admitted in Nishta Hospital, Multan, through emergency on 8th of June 2021 with a complaint of irregular heavy menstrual cycle from last 3 years and continuous heavy bleeding per vaginum and pain lower abdomen from last 4 months. My patient was all right 3 years back when she complained of irregular, heavy, prolonged cycle. She remained bleeding free for 4 to 5 days only. The bleeding was associated with the passage of clots, and she soaked 7 to 8 homemade pads per day. This bleeding was not associated with pain lower abdomen, pain during coitus, and she gave no history of any post-coital bleeding. For this bleeding, she went to the multiple doctors and took treatment in the form of oral medication. However, name and dosage were not known to the patient, and her symptoms was not completely resolved with this medication. Now, from last 4 months, she gave the history of continuous heavy bleeding per vagina with the passage of clots, so multiple homemade pads. She also gave the history of pain lower abdomen from last 4 months. The pain was gradual in onset, severe in intensity, not radiating, and with no aggravating factors. However, relieved to some extent with taking multiple painkillers and also after the passage of large clots. 6 days back, she was presented in emergency in shock where she was resuscitated, injection transamine and Prevlimid and was given and started to the patient. 2 units of blood was transfused. No BT reaction was observed. Now my patient is bleeding free from last 6 days and today is her sixth post-admission day and she was advised to arrange 4 or 6 more units of blood and she is told that she is having some uterine mass. However, exact nature of the disease was not known to the patient. My patient gave the history of shortness of breath, palpitations, easy fatigability. She is unable to do her daily household work. However, the shortness of breath was not associated with chest pain or any respiratory tract infections. There is no history of any bleeding disorder, epistaxis, gum bleeding, bleeding per rectum, hematuria in herself and in her family. There is no history of use of any contraception or IUCD insertion. There is no history of intake of any blood thinning drugs, and there is no history of dysuria, dysmenorrhea, dyschezia, or any chronic pelvic pain. There is no history of heat and cold intolerance, weight gain, weight loss, clectoria, headache, hirsutism, and acne. My patient gave no history of feeling of mass in abdomen or any pressure symptoms like swelling or something coming out of vagina. There is no history of weight loss, anorexia, pain, right hypochondrium, bone pain, blurring of vision, and there is no family history of any ovarian, colorectal, breast, uterine, or cervical cancer. My patient gave no history of chronic vaginal discharge, fever, cough, and there is no history of tuberculosis in herself, in her family, and there is no history of any multiple sexual partners in herself and her husband. Her husband is 30 years of age, uneducated, liberal, with no history of smoking, alcohol, key medication, with no history of diabetes, hypertension, chronic disease, and there is no history of any perineal, inguinal, or spinal cord surgery or trauma. There is no history of childhood mumps or meningitis in childhood in her husband. Her quality of life of my patient is very much disturbed due to this heavy bleeding, and now she wants the definite treatment for it. However, she wants the maximum efforts for the preservation of her uterus. However, different treatment options is still not discussed with the patient. My patient gives no history of diabetes, hypertension, ischemic heart disease in herself, in her family. There is no surgical history is not significant. There is no history of any drug allergy. However, she took multiple drugs for this for her complaint. Her husband is laborer by profession. His monthly income is about 15 to 20,000 per month. Basic necessities of life are met with difficulty.
My patient is Para 1. Her last childbirth is 6 years back, which is delivered by spontaneous vaginal delivery. Baby girl 6 years old, live and healthy. My patient gave um, my patient gave the history of subfertility for 1 year after her marriage, for which the couple went to the multiple doctors and took treatment. However, the name doses were not known to the patient, and according to patient, she was told that she was having some ovarian cyst, but she conceived spontaneously, spontaneously without any ovulation induction. हम्म, ठीक है, Mm, हो गई कंप्लीट आपकी हिस्ट्री? जी मैडम। अच्छा, और इसमें एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स? जी मैम, on general physical examination, a thin, lean lady lying in the bed comfortably, answering my questions intelligently, well-oriented in time, place, and person, having a body mass, BMI of 20 kg per meter square. Her blood pressure is 110 by 70 millimeter of mercury. Pulse is 100 beats per minute. She is afebrile and respiratory rate of 17 breaths per minute. There is a marked pallor, no jaundice, chylonychia, clubbing, thyroid is not enlarged, and orodental hygiene was poor. Her accessible lymph nodes were not palpable. She is having a normal vesical breathing, no added sound. Bilateral breasts are normal, looking symmetrical with normal areola and nipple complex, and no mass or lump is palpable in all four quadrants of breast. Her first and second heart sounds are audible, and apex beat is in fifth intercostal space, medial to mid clavicular line. On inspection, abdomen is scaphied, moving with the respiration, with no visible stria, scar marks. Umbilicus is central in position, inverted, and her hernia orifices are intact. On palpation, abdomen is soft. Soft. There is moderate tenderness in hypogastrium. However, no mass is palpable, no visceromegaly, and percussion nose is resident and bilateral, and vowel sounds are audible. On local examination, on local On local examination, vulva, urethra, perineum is normal looking with normal hair distribution, and there is no bleeding per vaginum or discharge is present at the introitus. On per speculum examination, the cervix is central in position, circular in shape with a pinpoint os, and both lateral vaginal walls are normal looking with no ulcer growth, nodule seen at the cervix and vagina. On biomanual examination, uterus is bulky, uniformly enlarged, 14-week size, mobile, inverted, tender, globular in shape and with regular margins. At the end of the examination, my gloves are not stained with discharge or bleeding. ठीक है। तो क्या डायग्नोसिस आपका क्या बना इसमें? पहले तो समराइज करें फिर डायग्नोसिस बताएं। पहले मैडम क्या समराइज करें, पहले समराइज करें केस को, फिर उसके बाद डायग्नोसिस बताएं। Mrs. Zakia, 27 years of age, Para 1, last childbirth 6 years back with secondary infertility and irregular heavy menstrual cycle and severe anemia. On examination, uterus is 14 to 16 week size, bulky, immobile and tender. ठीक है, तो क्या इसमें आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बना आफ्टर कंप्लीटिंग योर हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन? In my differential diagnosis, the first is submucosal fibroids. Second is adenomyosis and endometrial hyperplasia. अच्छा, ठीक है, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग आपका डायग्नोसिस क्या होगा? The most on the popular basis of diagnosis out of these three. Madam, submucosal fibroids. And Madam, second is adenomyosis. मैं मोस्ट प्रोबेबल पूछ रही हूँ, एंड मोस्ट Most probable, प्रोबेबल वाली चीज जब आ जाए तो वो एक ही होती है। Madam, most probable submucosal fibroids. कैसे? Madam, on the basis of the history, as she is having an irregular, heavy menstrual cycle, and in adenomyosis, and she is also having a low parity. ठीक है,
मैडम एग्जामिनेशन पे भी मैडम सब म्यूकोसल फाइब्रोमा इसलिए एग्जामिनेशन पे भी मुझे रेगुलरली इलाज यूट्रस मिली है। बट हाउ विड यू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम एडिनोमायोसिस? अगर ये सब म्यूकोसल फाइब्रोइड है या एडिनोमायोसिस है तो क्लिनिकली आप इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? मैडम क्लिनिकल ये तो हो ही जाएगा, बट क्लिनिकली कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू इन दिस केस? Madam, in adenomyosis, we were madam regular heavy menstrual cycle with severe dysmenorrhea and severe dyspareunia. And on examination is as in this patient there is a uniformly enlarged uterus which is tender, retroverted and fixed. ठीक है, बेसिकली क्लिनिकली ये ज्यादा केस फेवर में जाता है सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड के केस, उसमें उसके डायग्नोसिस पे, बिकॉज ऑफ इट्स टिपिकल प्रेजेंटेशन, क्योंकि एडिनोमायोसिस की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज समवॉट डिफरेंट। अगर ये क्लासिकल प्रेजेंटेशन डिफर कर सकती है फ्रॉम केस टू केस, बट स्टिल दिस वुड गो मोर लाइकली इन फेवर ऑफ डायग्नोसिस ऑफ सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड। अब जहां तक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स का ताल्लुक है, उसकी कंसिस्टेंसी आपने नहीं बताई। यूट्रस बल्कि जाहिर है दोनों में हो सकती है, बल्कि और 14 वीक साइज में वैसे फर्क होता है। आपने बल्कि भी कहा और 14 वीक साइज भी कहा, तो विच वन इज ट्रू, 14 वीक या बल्कि? बल्कि का मतलब क्या होता है? मैडम बल्कि का मतलब मैडम इनलार्ज होता, मैडम मुझे तो ये है कि 14 वीक्स इनलार्ज मल्टीपैक्स, हां 12 वीक्स तक मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम। तो आप इसमें 14 वीक्स भी कह रहे हो? जी मैडम ये 14 वीक्स थी, बल्कि नहीं होगी मैडम, फिर 14 वीक्स थी यूट्रस। तो आप बल्कि वाला लफ्ज जो है वो वापस ले रहे हो? चलो ठीक है, यूट्रस 14 वीक साइज है और एक ग्लोबुलर आपने बताया, इसका मतलब है कि रेगुलर यूनिफॉर्म मार्जिन्स ऑल अराउंड एंड इट्स टेंडर ऑन पल्पेशन। जी मैडम वेरी टेंडर। हाँ मैडम टेंडरनेस उसे बहुत ज्यादा थी पेशेंट को। अच्छा ठीक है, और इसके अलावा आप इसको इसमें और क्या चीजें बताने वाली हैं? कंसिस्टेंसी आपने नहीं बताई, ठीक है? जी मैडम। मैडम कंसिस्टेंसी मैडम कंसिस्टेंसी मैडम बिल्कुल फर्म भी नहीं थी और बहुत सॉफ्ट भी नहीं थी मैडम, ठीक है फर्म। इट वाज कंसिस्टेंसी आप इसमें कह सकते हो, जहाँ पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बिटवीन सॉफ्ट या फर्म, उसमें डिफरेंशिएट ना कर सको तो आप मीडियम का भी लफ्ज बोल सकते हैं, क्योंकि जाहिर है फाइब्रॉइड अगर ये बिल्कुल टोटली सब एंडोमेट्रियल है तो उसमें उसकी कंसिस्टेंसी पे इतना फर्क नहीं पड़ता, बट इफ इट्स अ मायोमेट्रियल फाइब्रॉइड एंड एनक्रोचिंग अपॉन टू द एंडोमेट्रियम, देन फिर उस सूरत में ये हो सकता है कि आपको वो फील हो इन फॉर्म ऑफ अ फर्म मैस। एनीवे इसमें ये नहीं था, तो इट कैन बी प्योरली अ सबम्यूकोसल फाइब्रॉइड जो मायोमेट्रियल में नहीं है। So we are left with the two options of submucosal fibroid and adenomyosis so far, क्योंकि endometrial hyperplasia वाली चीज इसमें less likely है due to her age, और इसके अलावा इसमें कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं है जिसमें हम ये कहें कि ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, एंड इट्स इंसिडेंस एट दिस यंग एज इज वेरी वेरी रेयर। तो इसको जो है आप उसमें से निकाल सकते हो। आप पॉलिप का भी चीज बता सकते हैं, एडिनोमायोसिस और सबम्यूकोसल फाइब्रोइड, बस ये इस हद तक रहें तो ज्यादा बेहतर है, वरना उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस केस। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन आप क्या क्या कराओगे, बिकॉज यू आर स्टिल नॉट श्योर कि ये एडिनोमायोसिस है या सबम्यूकोसल फाइब्रोइड है। जी मैम, for her basic health profile, I want her blood group with RH factor, complete blood count with date, including इसके रिजल्ट्स भी जरा बताते जाएं, इस पेशेंट में जो थे रिजल्ट्स वो भी बताती जाएं। Blood group was A positive. ठीक है। Her complete blood count with date. Madam, when she presented, she was having a HB of 4. HB of 4 gram per deciliter. 4, ठीक है। ये प्री ट्रांसफ्यूजन था एट एडमिशन। मैडम इससे भी पहले इसे एक ट्रांसफ्यूजन प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चुकी थी, उसके बाद ही आई थी हमारे पास 4 ग्राम थी, और उसके वजह से 2 ब्लड ट्रांसफ्यूज।
Her ठीक है। random blood sugar levels were normal. Her hepatitis, anti-HCV antibodies and hepatitis B surface antigen were negative. Her ठीक है। urine complete examination, biochemistry and microscopy was normal. Madam, I want her transvaginal ultrasound for the size of the uterus, endometrial thickness, regularity, any focal lesions, fibroid, polyp, myometrial texture, any asymmetrical thickening of myometrium, and any adnexal pathology. ठीक है। इस पेशेंट में जो ट्रांसवेजाइनल स्कैन हुआ था उसकी फाइंडिंग्स जो है वो क्या थी? मैडम इस पेशेंट में ना एब्डोमिनल पेल्विक स्कैन हुआ था और उसमें उन्होंने बस सिर्फ एडिनोमायोसिस लिखा हुआ था। अच्छा। और मल्टीपल टाइम्स हुआ था इसका अल्ट्रासाउंड, इसके पास पुरानी रिपोर्ट्स भी थी और हर रिपोर्ट में इसका इसका एडिनोमायोसिस ही लिखा हुआ था? जी मैडम, एडिनोमायोसिस ही लिखा। ठीक है, ठीक है। चलो, और मैडम I want also her hysterosalpingography, her husband semen analysis. मैडम ठीक है। अब हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी इस पेशेंट में क्या आपको अभी चाहिए? मैडम अभी मेरे पेशेंट कंटिन्यूअसली फॉर लास्ट 4 मंथ्स, तो क्या इसमें आपको अभी चाहिए? Madam, as my patient is bleeding free from last 6 days, and he is on tablet Parmalat and 2 TDS and on injection transamine 1 gram daily. ठीक है। Then first, मैडम मैं उसकी मतलब HP इम्प्रूव करके उसकी जनरल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी तो फिर मेरा नेक्स्ट मतलब यही है कि मैं उसकी स्टेरोसल्पिंगोग्राफी करूंगी टू सी एनी फोकल लेंस, ट्यूबल पेटेंसी, and then I will also receive the report of husband semen analysis. And then my further management will depend on these reports. चलो ठीक है, ये दोनों चीजें पेंडिंग होगी। ठीक है, इसको हम बाद में कराएंगे। और इसकी मैंने नाउ व्हाट रिस्क फैक्टर दिस पेशेंट हैज, क्लिनिकल इश्यूज इसके इस वक्त क्या हैं, अर्जेंट एंड क्रॉनिक सारे? मैडम urgent issues is severe anemia, heavy episodes of bleeding per vagina, और madam her chronic issues is irregular menstrual cycle from last 3 years and subfertility. ठीक है, इसका मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो है वो सारा उसमें कवर अप हो जाएगा, इसको अलग से फिर आप वो नहीं करोगे। ज़ाहिर पहले क्रॉनिक था, वो एक्यूट फॉर्म में प्रेजेंट किया। सो शी हैज 3 मेन इश्यूज, irregular menstrual cycle which is continuous and heavy, now resulting into severe anemia, and at the same time she is having problem of subfertility, secondary subfertility, because she has 1 issues. Now what do you think if after the diagnosis of adenomyosis on ultrasound, do you still think that adenomyosis can be the reason for her menstrual problem? And how? Although it is rare with history of nulliparity, but unusual presentations can present with unusual presentation. As on multiple ultrasound reports, there is the history of there is given adenomyosis, so it can be. लेकिन कैसे एडिनोमायोसिस कैसे करेगा इसकी हैवी जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है? जैसे फाइब्रॉइड का एक अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, and if it's adenomyosis, if we rely on the report of the ultrasound, so which can be based on your clinical examination as well, सिर्फ हिस्ट्री थोड़ी सी इसकी जरा atypical presentation हम कहेंगे, तो how it can cause this menstrual irregularity which this woman is having? मैडम इसके ये कि मतलब in adenomyosis pathology there is a growth of endometrium into the myometrium which under the influence of the hormones irregularly. And this problem exists from last 3 years. So now she was having heavy menstrual bleeding. अच्छा, ये आपने बताया था कि ये पहले भी इसका साइकिल irregular था, is it so? अगर मैंने सही सुना है कि पहले for last 3 years she was having irregular heavy menstrual bleeding.
जी जी मैडम, लास्ट 3 years से हैवी इरेगुलर साइकिल था उसका मैडम. शी ठीक है. रिमेन ब्लीडिंग फ्री फॉर 4 to 5 days ओनली हम्म. and she took ठीक है. multiple treatments but not responding to any treatment. ठीक है. और अब तो कंटिन्यूस था. जी मैडम, अब 4 ठीक months है. से कंटिन्यू. हम्म. ठीक है. तो इसमें क्या ये चीज राइट फ्रॉम द बिगनिंग शी वाज हैविंग दिस पैटर्न इरेगुलर. It did not have the course of events like in cases of adenomyosis or in cases of subendometrial fibroid, when there is an initial phase of heavy regular menstrual cycle, and then it results into irregular pattern and sometimes into even continuous bleeding. जी मैडम. तो इसमें how will you explain this phenomena? मैडम मैडम कि डिजीज की सिवियरिटी में कोई और भी अपनी ओपिनियन बता सकता है. जी सारा. मैडम ये कि पहले उसका मतलब फोकल एडिनोमाइसिस एंड देन एक्सटेंड जनरलाइज. ऐसा तो नहीं होता वैसे. And madam, there may is the coexistence of two pathologies. There may be the presence of submucosal fibroids with adenomyosis. Can It these may two be the coexist? क्या ये दोनों coexist कर सकते हैं, फाइब्रॉइड बी और एडिनोमायोसिस बी? madam, both are estrogen dependent diseases. They can cause. ठीक है, coexist बिल्कुल ये कर सकते हैं. So still you think that there can be two pathologies. ठीक है, जो कि अब अल्ट्रासाउंड रिपीटेड हुए उस पे सिर्फ एक ही चीज शो हो रही है, एडिनोमायोसिस. क्या एडिनोमायोसिस अल्ट्रासाउंड पे क्लियरली डायग्नोस हो जाता है या नहीं? मैडम एडिनोमाइसिस मोर क्लियरली. और इसमें कहीं पे भी फोकल एडिनोमायोसिस की बात उन्होंने नहीं की, सिर्फ एडिनोमायोसिस का मेंशन किया हुआ है. इफ वी रिलाई ऑन दैट रिपोर्ट ऑफ अल्ट्रासाउंड, और एग्जाम में आपको इसको रिलाई करना पड़ता है. Madam, although the sensitivity of ultrasound is less in diagnosis of the, but we can diagnose more from the MRI of adenomyosis. MRI कैसे इसको डिफरेंशिएट करेगा और कैसे डायग्नोस करेगा? अब बेसिकली ये है एक ऐसा केस जिसमें मिक्स्ड पिक्चर हो सकती है. ठीक है, एडिनोमायोसिस इसका अब अल्ट्रासाउंड पे आ गया, क्लिनिकली इसमें सबम्यूकोसल फाइब्रोइड वाली चीज भी लग रही है. So to have a more appropriate differentiation between these two, जो कि मिस हो सकती है on ultrasound, you can go for MRI, and this you can justify in your discussion, because until and unless you differentiate between these two and you clearly diagnose it to be a case of adenomyosis, how you would go for the treatment, further treatment. तो इसलिए इसका डायग्नोसिस बनाना भी बहुत जरूरी है कि इसमें आपकी ऑनवर्ड जो मैनेजमेंट है वो सारी इसी के ऊपर बेस करेगी. तो इसीलिए डायग्नोसिस पे हम अटके हुए हैं अभी तक कि इसका डायग्नोसिस सही तरह बन जाए, क्योंकि नाउ वी हैव ऑल द हिस्ट्री, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स एज वेल एज द इन्वेस्टिगेशन. सो इन दिस केस मेरे ख्याल में जहाँ पे इतनी जो है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, या इसमें थोड़ी सी ओवरलैपिंग ऑफ क्लिनिकल पिक्चर और फाइंडिंग्स और इसकी अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग्स भी, उसमें बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग एंड क्लियरली वी आर नॉट एबल टू मेक द डायग्नोसिस इट्स सो फार. तो इसमें MRI करवाने को आप जस्टिफाई बिल्कुल कर सकते हो. ठीक है, तो इसमें MRI पे ये सपोज ये अगेन आ जाता है एडिनोमायोसिस का ही केस. अब सपोज हमने इसको, चाहे इसकी हिस्ट्री कितनी भी एटिपिकल हो, चाहे वो उस स्टैंडर्ड पिक्चर को नहीं टैली करती, बट स्टिल नाउ यू हैव टू रिलाई ऑन दिस डायग्नोसिस के MRI के बाद भी ये एडिनोमायोसिस आ गया. क्योंकि अगर फाइब्रॉइड आ गया है तो उसकी तो मैनेजमेंट में फिर इतना कुछ मसला नहीं है. एक फाइब्रॉइड है उसको निकालो और उसके बाद बाकी चीजें आप मैनेज कर सकते हो. बट सपोज इफ इट कम्स आउट टू बी अ केस ऑफ एडिनोमायोसिस इवन ऑन अल्ट्रासाउंड, then what will be your management strategy in this case?
Up, this Assalamu alaikum, patient, ma'am. according to you, has three main issues. She is having severe anemia due to irregular heavy bleeding, as well as she is subfertile for last 6 years. तो इसमें इसकी मैनेजमेंट को आप कैसे एड्रेस करोगे? मैम एक क्वेश्चन पूछना था जी। मैम, इसमें इन्होंने बताया था कि सिर्फ पेल्विक अल्ट्रासाउंड हुए, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड नहीं हुए, तो हम लोग यहाँ पे एग्जामिनर से कह सकते हैं कि आई विल प्लान ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड की सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है। जो एक अल्ट्रासाउंड पिक्चर होती है एडिनोमायोसिस के केसेस में, जिनके बेसिस पे आप एडिनोमायोसिस को जाहिर डिफरेंट चीजें हैं जिनसे आप उसको डायग्नोस कर सकती हो एडिनोमायोसिस को, अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल और वो सारी जो है फाइंडिंग्स हैं, तो उनमें वो सब चीजें आपको ज्यादा बेहतर असेस आप कर सकते हो ऑन ट्रांसवेजाइनल स्कैन। तो ट्रांसवेजाइनल स्कैन फर्स्ट हैंड पे आप इसको मांगोगे जरूर। मैम इसका तो जो है ना, अब हमने मैम एक क्वेश्चन है, एडिनोमायोसिस के साथ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कोएग्जिस्ट हो सकता है? हो सकता है, तो हो इसको सकता है, लेकिन इसकी डायग्नोसिस ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट है ना ये सब चीजें, फाइब्रोइड भी है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया भी है और एडिनोमायोसिस इटसेल्फ भी, तो ये सारी चीजें कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन इस एज पे अगर हम एज को कंसीडर करें तो इस एज पे थोड़ी सी लेस लाइकली उसमें वो एक बिल्कुल बॉटम ऑफ द लिस्ट पे आएगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बॉटम ऑफ द लिस्ट पे आएगा, नॉट एट द टॉप ऑफ लिस्ट। तो बिल्कुल इसमें ये हो सकता है। नाउ कमिंग टू द फाइनल डायग्नोसिस ऑफ एडिनोमायोसिस, अब आपका डायग्नोसिस आपने इसको बना लिया ऑन एमआरआई और ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे भी, और फिर भी आपने मजीद डिफरेंशिएशन के लिए इसको एमआरआई भी कर लिया, टीबीएस भी कर लिया, सब कुछ। तो अब आप इसकी मैनेजमेंट को कैसे एड्रेस करोगे? First of all, I will counsel the patient and attendants about the diagnosis that she is having the adenomyosis, which is a cause of her heavy irregular menstrual cycle. And now as my patient is having a severe anemia, so our first aim is to improve her general health by the blood transfusion. Okay. Then after her general improvement of her health, then I will discuss with my patient. अब इसकी इस वक्त हीमोग्लोबिन इज 4, ठीक है, 4 है, और आपने इसकी हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करना है किस लेवल तक और किस तरह से? My aim is to improve her hemoglobin level at least 10 by blood transfusion, and then I will also give after that I will give her IV iron transfusion. कितनी ट्रांसफ्यूजन दोगे? She is at 4 hemoglobin now. Madam, at least 4 or 5 on alternate days. Alternate days पे 4 और 5, तो ये हीमोग्लोबिन 10 तक तो नहीं पहुंचेगी जो आपका एम था। मैडम उसकी 4 है, अगर मैं उसको 4 5 दूंगी तो ये 9 10 ऑलमोस्ट हो जाएगी। नहीं, 9 ये तो बड़ी आइडियल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है जिसमें ये 5 ब्लड के बाद 9 हो जाएगी। शी इज एट 4 नाउ। और क्या आप इसको होल ब्लड लगाएंगे या क्या लगाएंगे? I will give her PEG self volume under the cover of Lasix injection. Under the cover of what? Injection Lasix. Furosemide. PEG self volume के साथ भी Lasix देने की जरूरत है? आप उसमें प्लाज्मा तो दे नहीं रहे हो जो फ्लूइड ओवरलोड हो जाए, तो फिर आप Lasix क्यों दोगे? जी मैडम, फिर जरूरत नहीं है, मैं जब पैक सेल दूंगी तो। पैक सेल के साथ तो जरूरत नहीं होती। जी मैडम, और वो फ्लूइड ओवरलोड से बचाने के लिए ही हम पैक सेल दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर मैडम मैं इसे I will give her 4 units of blood, then I will reassess my patient. If she remain bleeding free, then I will and there is no bleeding occur, then I will give her IV iron. अच्छा, यानी आपने 10 तक करके फिर इसको IV आयरन भी दिया? मैडम आपका टारगेट लेवल क्या है इसमें? व्हाट टारगेट यू वांट टू अचीव इन दिस पेशेंट? मैडम, my target is to achieve the 11 gram per deciliter.
एंड हाउ द टारगेट वुड बी अचीव्ड, आपने 4 ब्लड लगा दिए बाकी, जिससे हो सकता है कि 7.5 तक चले जाए अगर हम इसको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक फार्मूला चलें तो ये 4 से 7.5 तक हो जाएगी। फिर उसके बाद the idea of giving blood transfusion is to bring her out of that danger zone. डेंजर जोन, जी मैम। इसलिए डेंजर जोन से ये बाहर आएगी जब ये 7 से ऊपर क्रॉस कर जाएगी, एंड मोर सेफली टू मेंशन जब ये 8 तक पहुंच जाएगी तो ये डेंजर जोन से बाहर आ जाएगी। बिकॉज अदरवाइज वी आर नॉट प्लानिंग फॉर हर सर्जरी, इमीडिएट सर्जरी या कुछ और ऐसा प्रोसीजर हम प्लान नहीं कर रहे जिसमें हमें इमीडिएटली इसकी हीमोग्लोबिन को अपलिफ्ट करने की जरूरत पड़े, जिसमें कि हमने इसको ब्लड लगा के ही 10 तक लेके जाना है। सो आइडिया इज टू ऑप्टिमाइज आवर हीमोग्लोबिन टिल 8 एंड देन टू ट्रांसफ्यूज आयरन। अब सवाल ये पैदा होता है, जो कई दफा पहले भी मैंने मेंशन किया है, कि पैक्ड सेल दें या होल ब्लड दें। उसके साथ डेफिनेटली आयरन इन्फ्यूज होता है। आरबीसीज के अंदर भी आयरन होता है, प्लाज्मा के अंदर भी आयरन होता है। तो जब आप ये इन्फ्यूज करते हो, ट्रांसफ्यूज करते हो पेशेंट को, तो आयरन पेशेंट के अंदर जा रहा होता है 1 यूनिट इक्वल टू 1 डोज ऑफ विनोफर। तकरीबन ये 200 से 250 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन ये पेशेंट के अंदर इन्फ्यूज हो रहा होता है। So basically you have to reassess the patient after transfusing her 4 units of blood, आप उसको ट्रांसफ्यूज करें एंड देन रीअसेस, क्योंकि जो आपने इसको ऑलरेडी एक ब्लड मिल गया, ऑलरेडी एक आयरन भी इसको लग गया, बल्कि तो उसका भी तो इफेक्ट है। तो उसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ आयरन जा रहा है वो भी तो एक्ट करेगा। So still you have to, because at the time her bleeding has been arrested by giving progestogen therapy. अगर ये ongoing hemorrhage होता है, यानी इसकी bleeding अभी तक बंद ना होती, तो उस सूरत में आप इसकी हीमोग्लोबिन को फिर सिर्फ 8 तक ना पहुंचाते, फिर इसको 10 तक पहुंचाते, because it is expected कि it will drop more. तो जब एक ऑनगोइंग हेमरेज चल रहा हो तो उसमें हीमोग्लोबिन को आपको टारगेट लेवल तक पहुंचाना ही होता है, क्योंकि वो उस ऑनगोइंग हेमरेज के साथ साथ हीमोग्लोबिन दोबारा ड्रॉप हो सकती है। लेकिन विद द अरेस्टेड हेमरेज यू कैन गो फॉर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जैसे ब्लड लगा के उसके मिनिमम सेफ लेवल तक पहुंचाया और उसके बाद इसको बाकी आपने ये देखना होता है कि आयरन का इफेक्ट इसका कब हो। तो ये तो होगी इसकी स्ट्रेटजी फॉर ऑप्टिमाइजिंग हर हीमोग्लोबिन लेवल्स। व्हाट फॉर हर प्रॉब्लम ऑफ इरेगुलर वेजाइनल ब्लीडिंग, बिकॉज दीज आर द 2 अर्जेंट इश्यूज टू बी डेल्ट विद इन दिस केस। ये 2 अर्जेंट इशू हैं, सब फर्टिलिटी कम्स नेक्स्ट। तो सबसे पहले आपने इन्हीं 2 को एड्रेस करना है। मैडम मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि अगर हम इसकी HB से इसके साइन सिम्टम्स इंप्रूव होने तक ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे कि उसको 7 तक लेके आना जरूरी है? नहीं, देखो अब सेफ्टी ऑफ हीमोग्लोबिन की जो मैं बात करती हूँ ना, सेफ लेवल, उसका ये मतलब होता है कि एक खास लेवल से नीचे पेशेंट में डिफरेंट किस्म की कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाती हैं, लाइक कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जो ज्यादा होती हैं। 6 से नीचे हो तो वो सीवियर एनीमिया में आ जाता है, और 6 से नीचे डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर भी शामिल है ड्यू टू कॉम्पनसेटरी टैकीकार्डिया इन दिस पेशेंट। तो इसलिए आपने उसमें सेफ्टी ऑफ जो सेफ हीमोग्लोबिन लेवल है वहां तक तो जाना ही जाना होता है, टू ब्रिंग द पेशेंट आउट ऑफ दैट डेंजर जोन जिसमें हीमोग्लोबिन इतनी कम हो गई। उसके बाद जब ये 7 बेसिकली ये वो लोअर लेवल होता है जिस तक आपने डेफिनेटली पहुंचना है, लेकिन उसके अगर बेहतर होता है कि अगर आप उसमें 8 तक चले जाओ, तो क्योंकि 8 पे आपको सेफ्टी ज्यादा होती है, एंड देन यू हैव मोर टाइम कि आप उसमें बाकी कंजर्वेटिव थेरेपी के साथ उसकी हीमोग्लोबिन हो बढ़ जाए, जो ब्लड के साथ भी आयरन गया उसमें भी उसको टाइम तो लगेगा, इमीडिएटली तो उससे हीमोग्लोबिन नहीं बन जाती, तो इट टेक्स टाइम। तो कम से कम पेशेंट वो उस डेंजर लिमिट से निकल आया बाहर। तो इसलिए मकसद उसका यही होता है कि हम उस मिनिमम हीमोग्लोबिन तक उसकी पहुंचा दें जहां पे उसको कोई वैसे अदरवाइज कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो।
थैंक यू मैडम। इसको आईवी आयरन किस तरह देंगे? क्या? पेशेंट को आईवी आयरन किस तरह देंगे? देखो, पहला तो मेरा यही इसमें रिजर्वेशन है कि इसमें आयरन जो है वो ब्लड के साथ हम दे रहे हैं। ये चीज हम भूल जाते हैं हमेशा। ब्लड लगाते हैं, फर्ज किया इसमें जो ज्यादा यूजुअल सिनेरियो होता है वो ये कि ब्लड लगाया, हीमोग्लोबिन 8 तक पहुंचा दी, और फिर 8 से लेके 11 तक पहुंचाने के लिए हम उतनी आयरन की डोजेस कैलकुलेट करके उसको दे रहे होते हैं। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? सब लोग ऐसे ही करते हैं ना? तो इसमें जो आयरन ब्लड के साथ अंदर गया, जो इन्फ्यूज हुआ, तो वो भी तो आयरन ही है। अगर 4 ब्लड लगाए तो समझे कि तकरीबन 4 वीनोफर की डोजेज उसके अंदर चली गई। सो वेट फॉर दैट आयरन टू फंक्शन, कि उसका सारा वो भी अपना काम कर सके। तो इसलिए उसके बाद हम कुछ टाइम इंतजार कर सकते हैं। ठीक है? और इसका अंदाजा हमें ये होगा कि जब हम लास्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के 1 हफ्ते बाद रेटिक काउंट करेंगे, तो रेटिक काउंट से हमें पता चलेगा कि हिमोपायोसिस अब हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि ब्लड से या पैक्ड सेल वॉल्यूम से आप इमीडिएटली रेड ब्लड सेल इन्फ्यूज कर रहे हो, उसमें तो हिमोपायोसिस वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन जो आयरन जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ गया, वो हीमोपायोसिस करेगा, और ये आपको एक श्योरिटी दे देगा कि यस, हीमोपायोसिस इज गोइंग ऑन विद दैट इन्फ्यूज्ड आयरन। और एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन या एक पैक्ड सेल के साथ जो आयरन अंदर जाता है, दैट इज 200 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन। तो इसलिए उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के 1 हफ्ते बाद आप रेटिक काउंट करके इसको देख सकते हो। अगर रेटिक काउंट बढ़ गया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये हिमोपायोसिस चल रही है, तो हम इसमें वेट कर सकते हैं। इफ नॉट, देन यू कैन गिव आयरन इन्फ्यूजन्स। ठीक है? क्योंकि इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लो कि थैलेसीमिक चिल्ड्रन हु आर गिवन रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन, हालांकि महीने के महीने ट्रांसफ्यूजन दी जाती है, बट स्टिल दे आर आयरन ओवरलोडेड। और आयरन ओवरलोडिंग की उसमें अगरचे और भी वजह होती है कि उसमें हेमोलाइसिस चल रही होती है, उससे भी आयरन निकलता है, और ये भी कि जो आयरन लगाया जाता है, जो ब्लड लगाया जाता है उसमें भी आयरन जा रहा होता है। सो देयर इज एन आयरन ओवरलोड जिसको अनडू करना पड़ता है बाय गिविंग सम थेरेपीज। ठीक है? तो अब हम चलते हैं आगे इसकी मैनेजमेंट की तरफ। तो अब हम आते हैं जो इसकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी थी कि उसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। इसका बिल्कुल इरेगुलर पैटर्न है फॉर लास्ट 3 years एंड नाउ ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली फॉर 3 months. 4 months. जी madam, I will discuss with my patient about the treatment options in the form of conservative and definitive. I will explain the patient that her bleeding is now controlled on tablet Famulate and 2 TDS, and that she has the option either to continue this medication, but if for 6 months continuously, or she also has the option of, जी मैडम। कॉन्टिन्यूसली का क्या मतलब है? आप बता रहे हैं 7 days. अच्छा, आप उसको कंटिन्यूअसली देंगे फॉर 6 months, क्यों? मैडम, first to improve her anemia. If there is any associated endometrial hyperplasia, it was reduced, and size of the uterus. एनीमिया का तो हमने ट्रीटमेंट अभी कर लिया, हमने उसको इम्प्रूव कर लिया, अपने टारगेट लेवल तक हमने पहुंचा दिया। तो फिर आप इसको कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन क्यों देना चाह रहे हो? Madam, if she again bleed in between 7 days, which were again the happy episodes, her HP will again drop. अच्छा, और भी कोई वजह हो सकती है? और मैडम कंटिन्यूसली जब हम देते हैं तो मैडम उसका रिग्रेशन रेट बेटर होता है। और क्या वजह हो सकती है? इसको आप और भी एक वजह से जस्टिफाई कर सकते हो, कैसे?
सॉरी मैडम, बताओ। सोचो कि इसको और हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं टू गिव कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन। यू कैन जस्टिफाई मैम इट। ये जो है ना, मैम ये जो है ना एमिनोरिक, माय पेशेंट रिमेन एमिनोरिक फॉर 6 मंथ, तो ठीक है, बिल्डअप वो तो इन्होंने हेपेटाइटिस बता बिल्डअप। दिया कि ब्लीडिंग फ्री रहेगी, एनीमिया इसको नहीं होगा, हीमोग्लोबिन और ड्रॉप नहीं होगी, बट व्हाट इज द अदर रीजन? अदर रीजन, व्हाट इज एडिनोमायोसिस? इट इज एडिनोमायोसिस को करेक्ट करेगी ये। कि एक जाहिर एस्ट्रोजन डिपेंडेंट ये एक एंडोमेट्रोसिस का केस है। इट इज जस्ट जी वन टाइप ऑफ द एंडोमेट्रोसिस। और एंडोमेट्रोसिस हो या एडिनोमायोसिस हो, उसमें कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन देने को आप बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हो। रेसिडुअलाइजेशन कराएगी उसकी। इसमें जो है वो जो भी उसकी एक्टोपिक साइट्स हैं उसकी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स की विद इन द मायोमेट्रियम, वो इसकी डिजेनरेट कर जाएंगी। सो दैट इज अनदर जस्टिफिकेशन ऑफ गिविंग इट कॉन्टिन्यूसली। ठीक है, एक चीज हो गई। डू यू थिंक पेशेंट इज केपेबल ऑफ टेकिंग कॉन्टिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन फॉर 6 months? वो इतनी कंप्लाइंट है। जो पेशेंट आपके पास आई तकरीबन 3 सालों के बाद और हीमोग्लोबिन 4 के साथ एंड अप हुई आपके पास, तो इसका मतलब है वो कंप्लाइंट नहीं है। Otherwise, she would have come in the initial phase of her problem. Her quality of life is grossly impaired due to severe anemia, और continuously वो bleed कर रही है 4 महीने से, लेकिन वो अब आई है। So how you can rely that she will take continuous progesterone according to your advice? Madam, I will also give her the option of levonorgestrel intrauterine system, Mirena. Madam, with which there is no issue of compliance. अच्छा, And the और पेशेंट पोर क्लास से ताल्लुक रखती है, कैन शी बाय इट? Madam, दूसरा किसी का cannot सवाल buy. ये था कि 14 वीक्स पे क्या आप माइरीना रख देंगे? मैडम, अगर एंडोमेट्रियल कैविटी हमारे पास रेगुलर है, देयर इज नो डिस्टॉर्शन, देयर इज नो फाइब्राइड more than 5 centimeter, then we can put in 12 to 14 week size, up to 14 week size. ठीक है। अब इसमें एक जो किसी का क्वेश्चन था साथ साथ हम उसको भी वो कर लेते हैं। अब ये कि ये इनफर्टिलिटी का केस है, तो क्या हम इसमें माइरीना रखेंगे? एक पहली चीज ये। दूसरी चीज ये थी कि अमूमन आईयूसीडी इंसर्शन या माइरीना वगैरह ये सब जो है वो उनका 12 वीक्स तक का साइज अप्रोप्रिएट साइज होता है जिसमें आप ये रख सकते हो, लेकिन 12 to 14 वीक साइज इंटरपर्सनल वेरिएशन भी हो सकती है एंड बेसिकली इन जजमेंट ऑफ द साइज ऑफ द यूटरस। एक ये हो गई। और तीसरी चीज ये कि इसमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला इशू डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ द पेशेंट हैज टू बाय हरसेल्फ, अगर ये वैसे फ्री में अरेंज हो जाता हो तो भी ये एक ऑप्शन है। चौथा सवाल ये था कि इसमें इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हम माइरीना रख सकते हैं? रख देंगे इस केस में खासतौर पे इसलिए कि शी हैज रिस्पॉन्डेड टू ओरल प्रोजेस्ट्रोजन। दैट मीन्स दैट यू कैन इंसर्ट माइरीना बिकॉज द पेशेंट स्टिल विल रिस्पॉन्ड टू इट। क्योंकि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रख देते हैं तो उसमें क्योंकि माइरीना इटसेल्फ बाज दफा ये कभी कभी थोड़ा सा साइकिल को इरेगुलर कर भी सकती है, इवन इन द पेशेंट्स हु आर हैविंग रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट स्टिल यू कैन इंसर्ट इन दिस केस जहां पे आपको ये बहुत ज्यादा ये इशू हो कि पेशेंट हो सकता है मेडिसिन ना ले, और इसमें सबसे बड़ा इशू ये होगा कि पेशेंट कभी अगर खरीद नहीं सकती तो वो बीच में छोड़ देगी, यानी इरेगुलर यूज ऑफ ड्रग। अब इरेगुलर यूज ऑफ ड्रग जो है that will worsen the situation more, और उसमें पेशेंट की ब्लीडिंग इरेगुलर पैटर्न और ज्यादा हो सकता है। तो इस वजह से फिर इसमें माइरीना को हम जस्टिफाई कर सकते हैं इवन विद 14 वीक साइज, इवन विद सब फर्टिलिटी, इवन विद द इरेगुलर साइकिल। तो इसमें क्योंकि वी हैव टू करेक्ट हर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या जो इरेगुलर पैटर्न है उसको हमने करेक्ट करना है हर हाल में,
ये उसका सबसे अर्जेंट और एक्यूट इशू है, उसको हम किए बगैर आगे नहीं चल सकते। तो इसलिए सबसे पहले हमने इसको एड्रेस करना है और उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाएंगे। तो ठीक है, इसको हमने प्रोजेस्टेरोन दे दिया या हमने मायरीना रख दिया। व्हाट इज द अदर प्लान ऑफ मैनेजमेंट? इसमें क्या हम इसके साथ, अब इसके शी इज 27 years old नाउ, अब आपने मुझे शुरू में ये बताया था कि आई विल डू हर हिस्टोसल्पिंगोग्राफी और ये हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी। तो पेशेंट जो है, इसको हमने 6 महीने के लिए प्रोजेस्टेरोन दे दिया या मेरिना रख दिया, व्हाटएवर, आप उसमें अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन के हिसाब से आप इसको इसकी मैनेजमेंट डिस्कस कर सकते हो। बट सपोज पेशेंट जो है वो इसमें ये ठीक रही, एमेनोरिक रही, व्हाट आफ्टर 6 months? इसकी इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी का इशू भी उसका एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो उस सूरत में आप फिर उसको कैसे एड्रेस करोगे, सब फर्टिलिटी के इशू को इन दिस पेशेंट? और क्या ये मेडिकली मैनेज करने के बाद ये मसला हल हो जाएगा? ये 6 महीने के लिए भी हम दें, उसके बाद जब हम ट्रीटमेंट छोड़ेंगे तो ये दोबारा से तो प्रॉब्लम हो सकता है। फिर इसका इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हम कैसे एड्रेस करेंगे? जी सारा, आपकी क्या ओपिनियन है? Madam, after 6 months, then I will do her tubal patency test as a workup of her infertility. I will also get her husband semen analysis report. If both are normal, then I will discuss with my patient about the ovulation induction. अभी वो एमेनोरिक है? Madam, I will do the withdrawal या प्रोजेस्टेरोन बंद करोगे? जो भी ट्रीटमेंट वो ले रही है, क्या पहले उसको स्टॉप करोगे? जी, progesterone, अगर my patient is taking the oral progesterone, then I will stop the oral progesterone and do the ovulation induction. If a patient is on Mirena, then at least I will give the Mirena for 2 years and then देखो, इस सारी ट्रीटमेंट के बाद सिम्टम तो उसके ठीक हो गए, एडिनोमाइसिस तो वहीं का वहीं रहा, मतलब ठीक है, वो श्रिंक हो गया इसलिए कि पेशेंट एमेनोरिक है, तो फॉर द टाइम बीइंग तो वो हो गया। अब जो बाकी इसकी इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट से पहले आपने हिस्टोसल्पिंगोग्राफी भी करवा ली, हस्बैंड सीमन एनालिसिस भी करवा लिया और प्रोवाइडेड वो सब ठीक है, फिर आपने ओवुलेशन इंडक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू की? जी मैडम। इतना आहिस्ता? मैडम वो इसलिए स्टार्ट की ओवुलेशन इंडक्शन के एज एडिनोमाइसिस कैन रीग्रो। ठीक है, so I will give her ovulation induction timely. अच्छा, और ओवुलेशन इंडक्शन आपने दे दी किस फॉर्म में? मैडम, I will start from tablet Clomid 50 milligram OD from day 2 कौन सी? tablet Clomid। अच्छा, ठीक है, 50 milligram OD से मैडम स्टार्ट करूंगी कि as it is cost effective है, cost effectiveness की वजह से। एक पेशेंट जो एमेनोरिक है उसमें 50 मिलीग्राम की काफी रहेगी ओवुलेशन इंडक्शन? मैडम अगर वो 50 मिलीग्राम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगी then I will increase the dose up to 150 मिलीग्राम। बेसिकली एक ऐसा पेशेंट जो एमेनोरिक है और जिसकी ओवुलेशन को, फॉलिकुलर मैचुरेशन को आपने बिल्कुल नॉक डाउन किया हुआ है, सप्रेस किया हुआ है, दैट पेशेंट नीड्स मोर इंक्रीज डोज ऑफ दैट ओवुलेशन इंडक्शन एंड इन दिस केस लेट्रोजोल विल बी अ बेटर चॉइस। ठीक है, उसमें वो एक ज्यादा बेहतर चॉइस रह जाती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो ये कि एडिनोमाइसिस इसका अगर जनरलाइज्ड है तो उसको तो आपने ज़ाहिर मेडिसिन के साथ ही उसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करना। इफ इट वुड बी अ केस ऑफ फोकल एडिनोमाइसिस, जो कि इस केस में लगता इसलिए भी नहीं है कि उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं है,
तो लेकिन ये कि फोकल हो तो उसको तो आप एड्रेस कर सकते हो सर्जिकली, जो कि उसके डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं जिसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बट थेरेपी इस केस में एनीमिया करेक्शन, जो इरेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है उसको आपने एड्रेस किया, उसको करेक्ट किया, एंड देन कम्स द मैनेजमेंट ऑफ सब फर्टिलिटी, जो कि आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ हर ट्यूबल पेटेंसी एंड सीमन एनालिसिस सब चीजें ठीक हैं तो यू विल गो फॉर द ओव्यूलेशन इंडक्शन। ओव्यूलेशन इंडक्शन के साथ साथ बेसिकली जब हम स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन या इवन आफ्टर द ओव्यूलेशन इंडक्शन भी जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें इन द केसेस ऑफ एडिनोमायोसिस इसका थोड़ा सा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल पॉपुलेशन without having any adenomyosis, without having any this menstrual irregularities, उसमें चांसेस उसके काफी कम होते हैं। तो इस वजह से there are quite bright chances that ovulation induction might fail in this case even। तो लेकिन इसमें जो बाकी पॉसिबिलिटीज होती हैं जैसे IVF ICSI वगैरह की, वो वहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस का इशू एक बहुत बड़ा इशू होगा। But at least you can try with ovulation induction on the first hand, and if it fails, then step by step you can go for the IU, and then finally you can consider IVF and ICSI in cases there are repeated failures of ovulation induction or of spontaneous conception। तो इसमें इसकी मैनेजमेंट बेसिकली इसी तरह से चलेगी, स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, एंड सब फर्टिलिटी विल बेसिकली बी एट द स्टेप 3 इसमें जो मैनेजमेंट वाली चॉइस है। तो इसलिए इसमें बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि एडिनोमायोसिस के साथ कितने चांसेस होंगे इवन विद द ART जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जिसमें सारी चीज़ें तकरीबन आ जाती हैं, तो इवन उसके साथ भी ड्यू टू इट्स एंडोजिनस पैथोलॉजी और इसकी जो स्पेसिफिक नेचर होती है एडिनोमायोसिस की and the specific impact which it has on fertility, तो उसकी वजह से इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स मैनेजमेंट में डेफिनेटली हैं। लेकिन ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपके पास बेसिकली होती नहीं है, खास तौर पे उन केसेस में जहाँ पे ये जनरलाइज्ड होमोजीनियस एडिनोमायोसिस हो। एमेनोरिया आप कितनी देर तक कर सकते हैं? डेफिनेटली इट हैज़ इट्स लिमिटेशन। आप 3 महीने 6 महीने करके फिर उसके बाद इसको आप जब ओवुलेशन इंडक्शन शुरू करेंगे, जब फॉलिकुलर रिक्रूटमेंट इसकी स्टार्ट होगी तो शी विल रीस्टार्ट द साइकिल अगेन। जरूरी तो नहीं है कि वो पहले ही 1-2 साइकिल में कंसीव कर जाए, बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। तो वहां पे रिकरेंस ऑफ एडिनोमायोसिस होने के चांसेस काफी ज्यादा ब्राइट होते हैं। तो इसलिए ये केस इस लिहाज से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा कि इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट मैनेजमेंट का एडिनोमायोसिस की और सब फर्टिलिटी की बहुत ज़्यादा हमारे पास चॉइसेस नहीं होती, और जो चॉइसेस होती हैं एडिनोमायोसिस की ट्रीटमेंट की वो उसमें सब फर्टिलिटी को हम फिर मैनेज नहीं कर सकते, वो उसको बिल्कुल फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है सब फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट को। तो इसलिए इसमें जो है ये थोड़ा सा आपको फिर टैक्टफुली इसकी डिस्कशन को, ऐसे केसेस की डिस्कशन को चलाना पड़ता है। अलबत्ता इसमें अगर ये फर्ज किया ये सब फर्टिलिटी का केस ना होता तो उस सूरत में तो मैनेजमेंट में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू इसलिए भी नहीं आ सकते कि इसको आप पेशेंट रिस्पॉन्ड कर दिया हार्मोन थेरेपी को तो यू कैन गो अहेड विद इट, उसमें उसको चलाते जाओ, उसमें मारीना भी रखी रहे बेशक, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये सारी ट्रीटमेंट उसकी सब फर्टिलिटी को मैनेज नहीं कर रही। तो सब फर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए साइकिल रिजम्पशन, ओवुलेशन की सारी चीजें, ये सब चीजें वापस आना तो बहुत जरूरी है। तो उस सूरत में फिर रिकरेंस ऑफ एडिनोमायोसिस हो सकता है। तो अभी तक हमने सिर्फ इसको सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट किया है, क्योंकि एडिनोमायोसिस को हमने फाइनल मैनेजमेंट उसकी उस तरह से नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिर यूट्रस के अंदर है एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स, ये बिल्कुल अलहदा से कोई जैसे ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा है उस तरह से नहीं है कि जिसको हम निकालें और काम चल जाए। तो दिस इज प्रेजेंट विद इन द यूट्रस, और फिर उसके अलावा सिर्फ यूट्रस के अंदर ये नहीं कि एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स ही होते हैं, बल्कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, रिएक्शन, रिपेयर, फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन। इसीलिए कभी अगर आपने क्रॉनिक एडिनोमायोसिस का केस कभी देखा हो या सर्जरी पे खास तौर पे देखा हो
तो ये बड़ा फार्म टू हार्ड किस्म का ये होता है। शुरू में तो ये जब खास तौर पे ये सॉफ्ट इनकंसिस्टेंसी होगा, लेकिन जो क्रॉनिक एडिनोमाइसिस चल रहा होता है, खास तौर पे जहाँ पे ये फोकल टाइप का होता है, वहां पे ये बिल्कुल जैसे स्कार टिश्यू या फाइब्रस टिश्यू की एक कंडेंसेशन है, उस तरह से ये होता है, और जिसको बाद दफा सर्जिकली रिसेक्ट कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में वहां की मायोमेट्रियम ही खत्म हो जाती है और यूट्रस के रप्चर और ये सब चीजों के चांसेस बाद में ऑनवर्ड हो सकते हैं। तो हर डिजीज, हर वो मैनेजमेंट प्लान जो हम एडिनोमाइसिस के लिए करते हैं, उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, खास तौर पे जब सब फर्टिलिटी वाला भी एलिमेंट उस पेशेंट में हो तो। ठीक है मैम, एक क्वेश्चन पूछना था मैम। जब इस पेशेंट को हम लोगों ने मायरीना रखी और लेकिन वो बहरहाल हो गई, इसको डिस्कशन को हम जरा क्लोज कर लें कि बहरहाल इसमें आप इसको इसी तरह से करोगे, एनीमिया को ट्रीट किया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को किया, और इसमें एमेनोरिया करना ज्यादा एडवाइजेबल इसलिए होगा कि वो एडिनोमाइसिस को भी टैकल कर रहा है, और इसके अलावा उसके एनीमिया की भी फर्दर करेक्शन होगी, और फिर उसके बाद आप ओव्यूलेशन इंडक्शन या बाकी आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स पे जा सकते हो। तो दिस वुड बी अ जनरल प्लान ऑफ मैनेजमेंट इन दिस केस, और उसमें कोई भी प्लान जो है वो किसी भी टाइम पे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। हाँ जी मैम, लेकिन हम इसमें कब ओव्यूलेशन इंडक्शन देंगे? क्योंकि पेशेंट एमेनोरिक होगी जब हमारे पास आएगी, हम मायरीना निकालेंगे, तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि आप जाएं मायरीना जब व्हेन यू निकालेंगे स्टार्टेड टू ब्लीड देन कम बैक? या हमने जो प्राइमोल्यूटेन उसको दिया वो हम बंद करेंगे, फर्स्ट साइकिल जैसे ही स्टार्ट होगा वो हम उस पे उसको ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमने इसमें नंबर ऑफ रिपीट उस तरह नहीं, क्योंकि उस सूरत में एडिनोमाइसिस की दोबारा से रिकरेंस हो जाएगी, विच विल डेफिनेटली इंटरफेयर विद द कंसेप्शन एज वेल एज द प्रेगनेंसी आउटकम। तो इसलिए हम बहुत ज्यादा साइकिल्स का वेट नहीं इसमें करेंगे, जस्ट विद द रिजम्पशन ऑफ द फर्स्ट साइकिल हम इसको ओव्यूलेशन इंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी मैम। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन इसमें इस केस से रिलेटेड? मैम ओसीपी क्यों नहीं यूज की हमने? हाँ बस देखो, इसमें अब चूंकि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को इनिशियली प्राइमोल्यूटेन से किया और वो ठीक हो गई, तो ये वैसे भी एक हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट होती है। अब ओसीपीज क्या आप कंटिन्यूसली देंगे फॉर 6 मंथ्स? इसमें हम 3 मंथ्स वाली भी बात कर सकते हैं, अगर उसका एनीमिया करेक्ट हो गया तो 3 मंथ्स अगर, लेकिन डिपेंड करता है कि एडिनोमाइसिस जनरलाइज्ड है, 14 वीक साइज है, इसका मतलब है कि एडिनोमाइसिस काफी लंबे अरसे से चल रहा है, तो इसलिए इसमें 6 मंथ्स की हमने बात की। बट डेफिनेटली इफ द पेशेंट इज टोटली सिम्टम फ्री एंड एमेनोरिक फॉर द 3 मंथ्स, वी कैन स्टार्ट ओव्यूलेशन इंडक्शन इवन आफ्टर द 3 मंथ्स। तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करेगा रिगार्डिंग द टाइम ऑफ ऑनसेट ऑफ ART, बाकी जो मैनेजमेंट ऑफ एडिनोमाइसिस है वो, और सब फर्टिलिटी को हमने कैसे मैनेज करना है उसमें भी। तो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत हो सकता है बिटवीन डिफरेंट पीपल। हम एनसेड्स यूज करके इसको ओव्यूलेशन इंडक्शन दे देते हैं ना, अगर हम मतलब इसका एनीमिया का इशू ना होता। देखो एनसेड्स से सिर्फ पेन का मसला हल होगा, उसकी मेरिट का मसला हल नहीं होगा, उससे एडिनोमाइसिस का मसला हल नहीं होगा। वो सिर्फ एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है जो कि इसकी पेन को मैनेज करेगी। और एनसेड जो है वो डेफिनेटली, एनसेड का एक और भी इफेक्ट होता है कि ये ओव्यूलेशन, इसको ओव्यूलेशन को रोकती है। इसमें जो अनरप्चर्ड ल्यूटिनाइज्ड फॉलिकल होता है वो इसमें होता है परसिस्टेंट, तो इसलिए जो है वो इसमें एनसेड सिर्फ आप फॉर द टाइम बीइंग फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पेन आप इसको दे सकते हो। तो वही हमने बात की ना कि देयर आर सो मेनी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज इन दिस केस। ऐसे तो इसमें ओसीपीज हैं, प्राइमोल्यूटेन है, मायरीना है, एनसेड्स हैं, ट्रांजेमिन है, और इसके अलावा GnRH एनालॉग्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल है। तो इसलिए इसमें जो है वो डिफरेंट मैनेजमेंट चॉइसेस हैं। तो इसलिए इसमें सब डिफरेंट लोग इसको डिफरेंट तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं, लेकिन आप इसको सिंपल तरीके से इसको मैनेज करो, सिंपल तरीके से। ठीक है मैम, हम इस पेशेंट को होल ब्लड दे सकते हैं? नहीं, 4 हीमोग्लोबिन पे तो नहीं दोगे।
क्योंकि देखो इसमें क्रॉनिक एनीमिया है, वो इसलिए कि पेशेंट पिछले 3 साल से ब्लीड कर रही है। ऐसा नहीं है कि इसने अभी इमीडिएटली ब्लीड किया। इमीडिएटली जो ब्लीड करता है पेशेंट, उसमें प्लाज्मा वॉल्यूम, उसमें आरबीसीज, ये सारे के सारे डेफिशिएंट होते हैं। फिर भी उन केसेस में भी जिनमें एक्यूट ब्लीडिंग भी हो एंड हीमोग्लोबिन ऑफ 4, वहां पे भी इसमें चूंकि टैकीकार्डिया होता है, इसमें ऑलरेडी हाई आउटपुट की तरफ जा रहा होता है पेशेंट, तो इसलिए इसमें फिर फ्लूइड ओवरलोड से हमेशा अवॉइड किया जाता है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड विल फर्दर वर्सन द सिचुएशन ऑफ हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। तो ऐसे सूरत में अगर हमारे पास हमने अर्जेंटली देना हो होल ब्लड, तो फिर हम उसको लेसिक्स के अंडर कवर देते हैं ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि इसमें हम पैक्स एंड वॉल्यूम ही दें। थैंक यू मैम। ठीक है, तो इसमें और किसी का कोई क्वेश्चन हो, वरना फिर हम वाइंड अप करें। मैडम व्हाई नॉट प्राइमुलेट एन? जी, व्हाई नॉट प्राइमुलेट एन? तो प्राइमुलेट ही हमने दी है ना इस पेशेंट को अभी तक। तो इस पेशेंट की मैनेजमेंट हुई ही प्राइमुलेट पे है। ठीक है, हेलो जी जी मैम, इसको इंजेक्टेबल फॉर्म में प्रोजेस्टेरोन नहीं दे सकते? दे सकते हैं इंजेक्टेबल। जो है वो अगर एक्यूट ब्लीडिंग चल रही हो, जैसे पेशेंट को हमने अगर फर्ज किया ये दिया है प्राइमुलेट दिया है, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही, तो इंजेक्टेबल जो प्रोजेस्ट्रोजेंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे इफेक्टिव इसमें साबित होते हैं, जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग फिर भी चल रही हो। लेकिन जो केस कंट्रोल हो चुका हुआ है ऑन प्राइमुलेट, उस पे आप क्यों दोगे प्रोजेस्ट्रोजन, इंजेक्टेबल प्रोजेस्ट्रोजन? जैसे ओरल की कॉम्प्लायंस, 3 महीने, उसका इफेक्ट 3 महीने तक रहेगा। और हो सकता है इसमें डिपो प्रेपरेशन, उसमें ये चीज होती है कि डिपो प्रेपरेशन जब आप देते हैं तो उसमें उसके इरेटिक कंसंट्रेशन होती है सीरम में, यानी किसी वक्त ज्यादा और किसी वक्त कम। तो इरेटिक कंसंट्रेशन के साथ बार दफा थ्रेशोल्ड ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं, जैसे इरेगुलर स्पॉटिंग वगैरह, ये सब चीजें हो सकती हैं पॉसिबली। तो वो चीज फिर भी इसमें रहेगी कि रेगुलर स्पॉटिंग वाला प्रॉब्लम ना हो। But if the patient has been well controlled by giving oral progesterone therapy, then why not to continue with it? फिर इसमें एडिशनली, लेकिन इसका रोल डेफिनेटली है, अगर ये ब्लीडिंग फिर भी कंटिन्यू रहती तो फिर हम इसको ये दे सकते थे। सो लाइक आई ऑलरेडी सेड कि इसमें आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इस केस में अगर ब्लीडिंग फिर भी ना रुक रही होती तो GnRH एनालॉग्स वुड बी अ बेटर चॉइस, क्योंकि उससे एकदम से हाइपोएस्ट्रोजेनिक स्टेट डेवलप होती है एंड द पेशेंट बिकम्स एमेनोरिक। और जो बहुत रेजिस्टेंट ब्लीडिंग वाले केसेस होते हैं, जो हैवी ब्लीडिंग जो किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रही होती, और इवन इन केसेस ऑफ एडिनोमाइसिस, इवन इन केसेस ऑफ एंडोमेट्रोसिस, इवन इन केसेस ऑफ द फाइब्रोइड यूट्रस, दैट वर्क्स वेल GnRH एनालॉग्स। वहां पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस का भी इशू आ जाता है, और उसका फिर एक ट्रीटमेंट लिमिटेशन का भी इशू आ जाता है। ज़रा मंथली बेसिस पे इंजेक्शन लगेगा, और कम से कम आप 3 महीने तो दोगे, उससे आगे अगर एक्सटेंड करना पड़ेगा तो फिर एडवैक थेरेपी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चॉइसेस तो बहुत सारी हैं मैम। ओरल GnRH एंटागोनिस्ट का मैम इसमें क्या कोई रोल होगा? ओरल है तो सही, लेकिन ओरल क्या हमारी कंट्री में अवेलेबल है? ओरल का अब रोल आता जा रहा है, लेकिन ये है कि जैसे बाज दफा ये नेजल पफ्स होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन ये कि वो तो GnRH एनालॉग्स की डिफरेंट प्रेपरेशंस हैं। वो रहेगी तो वही ड्रग जिसके डिफरेंट प्रेजेंटेशंस हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, डिफरेंट जो है वो इस्तेमाल के तरीके हैं, तो वो तो उसमें तो आप कोई भी उसमें प्रेपरेशन दे सकते हो, क्योंकि बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो उन सब का एक ही जैसा होगा कि GnRH एनालॉग्स ने जिस तरह से काम करना है वो उस तरीके से तो करेगा। वो तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो नहीं चेंज हो रहा बाय डिफरेंट, मतलब जो उसके हैं तरीके इस्तेमाल के जो हैं वो डिफरेंट तरीके से, कोई फर्क तो नहीं हो जाता, सिर्फ उसमें थोड़ी सी कन्वीनियंस हो जाती है यूज की। और डेली बेसिस पे यूज करना या पेशेंट के लिए मल्टीपल पफ्स लेना, नेजल पफ्स भी इवन, तो वो बाद दफा इनकन्वीनियंट हो जाता है एज कंपेयर टू मंथली इंजेक्शन। ठीक है
मैडम एंडोमेट्रियल बायोप्सी का कोई रोल है इस पेशेंट में? एंडोमेट्रियल बायोप्सी का रोल, अगर आप सिर्फ उसमें आपको वजह बतानी पड़ेगी कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी आप क्यों करना चाह रहे हो, बिकॉज इफ यू वांट टू रूल आउट एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजी तो वो आप उस सूरत में करोगे जब ब्लीडिंग अरेस्ट होने के बाद एंडोमेट्रियल थिकनेस इसकी ज्यादा आ जाए तो उस सूरत में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया यंग एज पे भी रेयरली हो तो जाता है, तो उस सूरत में आप एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के लिए कह सकते हो कि ठीक है मैं इसमें करूंगी। और बाद दफा एंडोमेट्रियल बायोप्सी आप करते हो और उसमें डायग्नोसिस, उसमें खास तौर पे अगर मायोमेट्रियल टिश्यू भी बीच में आ जाए तो उसमें एक डायग्नोसिस एडिनोमाइसिस वाला भी बन सकता है। सो दैट सर्व्स टू पर्पसेस। लेकिन ये है कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया को रूल आउट करने के लिए आपके पास एक तो उसके रिस्क फैक्टर होने चाहिए, दूसरी चीज ये कि एंडोमेट्रियल थिकनेस उसकी ट्रांसवेजाइनल स्कैन पे कितनी है। तो ये दो चीजें आपके पास होंगी तो आप एंडोमेट्रियल बायोप्सी को जस्टिफाई कर सकते हो। अदरवाइज यंग एज पे एंडोमेट्रियल बायोप्सी को जस्टिफाई करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एंडोमेट्रियल सीए या एंडोमेट्रियल या कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया वगैरह ये सारी चीजें आर नॉट वेरी कॉमन इन यंग एज। अलबत्ता यही पेशेंट अगर 40 ईयर्स से अबव होता तो डेफिनेटली आप करते, चूंकि ये 27 ईयर्स की यंग एज है, कोई उसका फैमिली रिस्क फैक्टर, उस पेशेंट के अपने अंदर कोई रिस्क फैक्टर ऐसे नहीं है, तो सिर्फ आप उस बेस पे कि ये एडिनोमाइसिस का केस है, हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट है, तो उसमें हम कर लेंगे कि दिस इज जस्ट एन अजम्पशन। तो अजम्पशन की बेस पे आप इस तरह की इंटरवेंशनल इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। सो नॉन इन्वेजिव टेस्टिंग लाइक टीवीएस पे आपने एंडोमेट्रियल थिकनेस को एवेलुएट किया और बाज दफा एंडोमेट्रियल थिकनेस के साथ साथ आप सब एंडोमेट्रियल फ्लो भी देखें। इफ इट इज रेज तो इसका मतलब है कि इसमें इस पेशेंट में बायोप्सी की जरूरत है। और एंडोमेट्रियल थिकनेस हम देखते हैं जब ब्लीडिंग खत्म हो जाए, क्योंकि इन प्रेजेंस ऑफ ब्लीडिंग एंडोमेट्रियल थिकनेस में फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस ज्यादा होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द ब्लड स्ट्रीक और इवन द क्लॉट्स विद इन द एंडोमेट्रियल कैनाल। ठीक है, और तो नहीं किसी का क्वेश्चन, फिर इसको हम खत्म करें। मैम इन्यूक्लिएशन का क्या रोल है? किसका? इन्यूक्लिएशन। इन्यूक्लिएशन ऑफ व्हाट? मैम चूंकि इसके लिए एमआरआई भी हुआ है, तो मतलब कोई फोकल लीजन वगैरह होगा इसमें जो डिफरेंशिएट नहीं कर सके? नहीं, फोकल लीजन हो तो उसमें तो फोकल लीजन हमें अल्ट्रासाउंड पे बाल दफा उसके साथ मिक्सअप हो जाती है, जैसे फाइब्रोइड यूट्रस है, और इसीलिए एमआरआई फोकल लीजन्स में ज्यादा बेहतर तरीके से करवाया इसलिए जाता है कि वो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन फाइब्रोइड एंड फोकल एडिनोमायोसिस। और अगर फर्ज किया ये फोकल एडिनोमायोसिस ही है जो एमआरआई पे हमें क्लियरली पता चल गया और बाकी यूट्रस जो है वो क्लियर है, तो इसमें डेफिनेटली इन्यूक्लिएशन के अलावा उससे ज्यादा बेहतर, इन्यूक्लिएशन का मतलब तो ये है कि सर्जरी करें और मायोमेट्रियम को काटें और वो जो फोकल एडिनोमायोसिस वाला स्पॉट है उसको निकाल दें बाहर, ऐसा ही है ना? यस मैम। कि उसको हम एक्साइज कर दें। अब जब हम फोकल एडिनोमायोसिस को एक्साइज करते हैं तो बेसिकली दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, फाइब्रस टिश्यू, थोड़ा सा मायोमेट्रियल टिश्यू, वहां का वो वाला हिस्सा जहां से हमने फोकल एडिनोमायोसिस, इसका कोई कैप्सूल नहीं होता क्योंकि दिस इज मिक्स्ड अप विद द रेस्ट ऑफ द मायोमेट्रियम, तो वो वाला हिस्सा जहां से हमने इसको निकाला होता है, कोई इसका बॉर्डर नहीं होता, इसलिए हमें अंदाजे से ही करना पड़ता है। तो वो जगह जहां से हम इसको निकालते हैं वो वहां पे मायोमेट्रियम ग्रो नहीं करती, वहां की जो मायोमेट्रियम है वो डेफिशिएंट रह जाती है, वहां का जो पार्ट है यूट्रस का वो दैट इज वीकेंड फॉर एवर। तो पेशेंट जब नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगा तो उस पार्ट के रप्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो यही वजह है कि इसमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं, वो ये कि उसमें जैसे हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो इसमें मायोलाइसिस होती है, तो वो बेसिकली हम कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली इसमें थर्मल कोएगुलेशन होती है, एवेपोरेशन उसकी हो जाती है, वो उसको डीजनरेट कर दिया जाता है उस टिश्यू को। दैट इज अ बेटर चॉइस क्योंकि उसमें सर्जरी नहीं होती, उसमें स्कार नहीं बनता और वो सिर्फ इतना सा एरिया जो है वो
उसकी मायोलाइसिस हो जाती है। तो इसके अलावा जो है वो उसमें बेसिकली फिर आप यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी कर सकते हो, लेकिन उसमें सबसे बड़ी कबाहत ये होती है कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन को, दो इट इज क्लेम्ड कि सिर्फ पिक्यूलियर आर्टरी ही एम्बोलाइज की जाती है, बट इन द केसेस हु आर सब फर्टाइल वहां पे ओवेरियन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज समटाइम्स द ब्लड वेसल सप्लाइंग टू द ओवरी इज आल्सो ब्लॉक्ड। तो इसलिए उन केसेस में फिर ये एक प्रेफरेबल चॉइस नहीं रह जाती सब फर्टाइल वुमेन में। तो इसमें ऑल्टरनेटिव थेरेपीज पे चले जाना चाहिए, वरना सर्जरी की ऑप्शन तो है ही है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टॉप कर दें। कोई और किसी अगर यही पेशेंट हमारे पास फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ, तो मसला ही हल हो जाता। मसला अगर फाइब्रॉइड यूट्रस के साथ होता तो इसमें तो मसला हल हो जाता कि हम फाइब्रॉइड को निकाल लेते। यस मैम, वो बात ठीक है। अगर ये सब फाइब्रॉइड हो। यस मैम, मैं पूछना चाह रही हूँ, अगर ये फाइब्रॉइड यूट्रस और 4HB के साथ हो और यंग पेशेंट हो 28 इयर्स की, उसके HMB हो, नेक्स्ट साइकिल से पहले तो हमने उसकी माइमेक्टमी प्लान करनी है ना, क्योंकि वो पेशेंट दोबारा उसकी एचबी जाहिर है एक प्रॉब्लम उसकी वजह से हो रहा है, तो उसमें डेफिनेटली हम इसको करेंगे। और उसके बाद उसकी हीमोग्लोबिन को रेज करेंगे, फिर उसके बाद इसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करके, ब्लीडिंग को स्टॉप करना भी जरूरी है क्योंकि इसमें 4 हीमोग्लोबिन है, हमने उसको कुछ टाइम देना है, रिलीफ टाइम देना है, and within that time period we will plan for the myomectomy because that is the main culprit। हाँ जी मैम, उसको रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, वो तो उसके बाद खत्म हो जाती है अपने टाइम के बाद, और नेक्स्ट मंथ से पहले हम ये करनी है। अगर इस केस से हट के अगर ये कॉन्टिन्यूस या इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है और सब एंडोमेट्रियल फाइब्रॉइड आपने डायग्नोज कर लिया, तो हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करें और अगले पीरियड के आने के खत्म होने के फौरन बाद प्लान करें मायोमेक्टमी का। मैम, उसकी एचबी भी ऐसी बिल्डअप करेंगे 4 ब्लड लगा के और फिर आयरन लगा के, या उसमें ज्यादा फिक्स आपको अगले साइकिल में प्लान कर लेना चाहिए, अगले साइकिल के फौरन बाद, ज्यादा साइकिल से पहले नहीं करोगे, उसके अगले साइकिल के खत्म होने के फौरन बाद उसकी मायोमेक्टमी प्लान कर दें और इस टाइम पीरियड में आपने उसकी हीमोग्लोबिन को ऑप्टिमाइज करना है। अगेन वही इसमें रूल रहेगा कि 4 हीमोग्लोबिन के साथ आप सिर्फ आयरन पे नहीं रिलाई करोगे, बिकॉज पेशेंट इज इन डेंजर जोन, इसलिए उसको आपने हीमोग्लोबिन को 7-8 से ऊपर 7-8 तक जरूरी ले जाना है, और उसके बाद फिर आप उसको इतना अगर टाइम पीरियड आपके पास है तो फिर उसके बाद आप उसको अगर जरूरत पड़े तो आयरन थेरेपी दे सकते। मैम, आपने जैसे बताया कि फोकल एडिनोमायोसिस में हाई फ्रीक्वेंसी मायोलाइसिस कराएंगे, तो उसमें उसके बाद कंसेप्शन का रेट कम नहीं हो जाएगा? नहीं, उसमें नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ उसी जगह पे सेंट्रल्ड होता है जहां पे कि वो एडिनोमायोसिस वाली जगह है, इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड का भी तो यही इलाज हम कर सकते हैं। फाइब्रॉइड या एडिनोमायोसिस स्पॉट जो है वो हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए, जो हमें एमआरआई पे पता चल जाएगी, इवन 3D अल्ट्रासाउंड पे भी वैसे पता चल जाती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैडम, मैंने एक पेशेंट देखा था, कोई और पेशेंट है, उसके बारे में थोड़ा सा पूछना था। मैडम 45 ईयर फीमेल है, पैरा 4 विद नो मिसकैरेज, लास्ट चाइल्ड बर्थ पेशेंट की 12 इयर्स बैक थी और उस सेक्शन में पेशेंट का BTL भी हो गया था। अब पेशेंट ये बताती है कि 12 इयर्स के अगले 2 साल जो थे पेशेंट को पीरियड्स की वो जो क्वांटिटी थी वो कम हुई लेकिन रेगुलर थे। फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स पेशेंट को एमिनोरिया हो गया। अब पेशेंट की हमारे पास कंप्लेन ये थी कि उसे 6 मंथ से PV स्पॉटिंग से आई थी। 6 मंथ से पेशेंट में कोई प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वाले मतलब कि हिस्ट्री में कोई एंडोक्राइन इशू, कोई उस प्रेगनेंसी में हैवी ब्लीडिंग, कोई पोस्ट डिस्चार्ज पोस्ट ऑप या पोस्ट ऑप कोई DNC ENC की हिस्ट्री नहीं थी किसी किस्म। मतलब मैंने प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर के लिए पूछा था। एग्जामिनेशन पे पेशेंट की मतलब 10 इयर्स का अगर एमिनोरिक हो गई हो तो उसकी ब्रेस्ट एट्रोफिड और वल्वा वजाइना भी एट्रोफिड होते हैं, ऐसा भी कोई फीचर नहीं था। वजाइना भी एस्ट्रोजेनाइज्ड लग रहा था। जब बायमैनुअल एग्जामिनेशन किया तो यूट्रस 10 to 12 वीक साइज था, सर्विक्स नॉर्मल लुकिंग था। मैडम इस पेशेंट को मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इसे
एज जो हम टेम्पलेट खोलते हैं उसमें पोस्ट मेनोपॉजल वाला ही ब्लीडिंग स्पॉटिंग के पेशेंट की कंप्लेन हमारी पोस्ट मेनोपॉजल स्पॉटिंग होनी चाहिए। देखो आइडियली, साइंटिफिकली, एकेडमिकली, लिटरेचर के हिसाब से 1 साल के एमेनोरिया के बाद वो मेनोपॉजिलेबल हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। यानी अगर कभी इसका FSH हुआ हो या आपने अभी करवाया हो और वो उस पे, क्योंकि जाहिर है एमेनोरिया की और भी डिफरेंट कॉजेस हो सकती हैं, तो इसको मतलब कंफर्म करने के लिए आपको FSH पे तो जाना पड़ेगा, so as to diagnose it as a case of postmenopausal। लेकिन अगर आप सिर्फ क्लिनिकल हिस्ट्री पे जाएं तो उसमें तो जाहिर है कि postmenopausal वाला ही बनता है, चाहे उसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स उसके साथ टैली नहीं करती। तो लेकिन इस क्वेरी को सॉल्व करने के लिए फिर आपको FSH लेवल इसके करवाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये मेनोपॉज का केस था तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि FSH अब नॉर्मल हो जाए, अनलेस कि आपने इसको कोई HRT दी या कोई और अगर हार्मोनल प्रेपरेशन दी है तो वो टेम्परेरीली अंडर इफेक्ट ऑफ दैट ड्रग FSH लेवल उसके नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो इसीलिए इस केस में फिर FSH बनता है टू कंफर्म इट एज अ केस ऑफ मेनोपॉज। मैम इन्वेस्टिगेशन हमने तो एग्जाम में बाद में मांगनी है ना, तो अभी हम इसमें वही मतलब कि जब हम हिस्ट्री ले लेंगे ये ब्लीडिंग की PV स्पॉटिंग की, उसके बाद वही एट्रोफिक या सर्विक्स या एंडोमेट्रियम और इन्फेक्टिव कॉज ही सोचेंगे ना जो हम पोस्ट। मैम जब इसकी इन्वेस्टिगेशन मैंने मांगी, मैंने FSH मांगा था क्योंकि मुझे वो पेशेंट ऐसे 10 इयर्स का मेनोपॉज वाली लग नहीं रही थी, लुक ना वो बहुत यंग और हेल्दी सी थी। मैम इसका FH 17 है। 17 और कोई ड्रग यूज वगैरह तो नहीं है कुछ? सॉरी क्या? मैंने कहा कोई ड्रग वगैरह इसने यूज तो नहीं की? नो मैम नहीं, बस उसे जब करंटली तो नहीं है अभी भी कुछ यूज नहीं कर रही। और जब उसको पहले एमेनोरिया हुआ था तब उसने सिर्फ 4 आयरन लगवाए थे। हाँ ठीक है, इसके अलावा से कभी कोई मेडिसिन नहीं। वो अपने एमेनोरिया से खुश थी कि मतलब ठीक है खत्म हो गया। हाँ इससे उसे कभी ट्रीटमेंट नहीं जो FSH 17 है वो तो मेनोपॉज पे फिट नहीं बैठता जी मैम, ना ही ये ओवेरियन फेलियर पे फिट बैठता है, क्योंकि इसकी जो अपर लिमिट होती है अप टिल 20 आप इसको एक लिमिट लेते हो फॉर मतलब जो ओवेरियन फेलियर है, लेकिन इसका कंफर्म हो जाता है अगर ये 40 से ऊपर हो। बिटवीन 20 एंड 40 मे बी ड्यू टू अदर रीजन, जैसे ओवेरियन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है कि ओवरी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही टू गोनेडोट्रोफिन्स, तो उस सूरत में भी बाद दफा FSH लेवल रेस हो जाता है, क्योंकि ओवरी जब भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी इधर ड्यू टू एंडोजिनस फेलियर और ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम के जिसमें ओवरी नहीं रिस्पॉन्ड कर रही होती ड्यू टू सम अदर एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज, तो उस सूरत में 20-40 के दरमियान में रह सकता है। लेकिन अगर 40 से ऊपर हो तो दैट डेफिनेटली इज ड्यू टू ओवेरियन फेलियर वेदर प्रीमैच्योर और मेनोपॉज एट एन अप्रोप्रिएट एज। तो 17 वाला तो इसमें ओवेरियन फेलियर पे नहीं जाता। सो यू हैव टू बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द अदर रीजंस फॉर इट। मैम तो इसके लिए और क्या, और इसके लिए फिर क्या करवाएं पेशेंट के, मतलब बाकी एंडोक्राइन वाले कोई सिम्टम नहीं है तो क्या एंडोक्राइन में TFTs प्रोलैक्टिन मांगने चाहिए? यू हैव टू लुक इनटू द अदर रीजंस एज वेल, जिसमें बाकी एंडोक्राइनोलॉजिकल इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए वो फिर करवाने बनते हैं, क्योंकि आपने उसके एमेनोरिया की वजह तो देखनी है। या फिर अब एमेनोरिया अगर फर्ज किया, देखो अगर उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे, मेनोपॉज के नहीं थे, ब्रेस्ट एट्रोफी नहीं थी और उसमें कोई हॉट फ्लैशेस वगैरह या कुछ भी ऐसे सिम्टम नहीं थे, यूट्रस एट्रोफी नहीं, इसका मतलब है ईस्ट्रोजन ठीक बन रही थी सिस्टम में। और ईस्ट्रोजन ठीक बनने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस भी ठीक था, पिट्यूटरी भी ठीक था, सो देयर माइट बी समथिंग रॉन्ग विद द यूट्रस। तो यूट्रस में कोई ऐसा तो नहीं है कि एंडोमेट्रियल एट्रोफी उसकी किसी वजह से हो गई हो, विच मे बी ड्यू टू सम सर्जरी, विच मे बी ड्यू टू सम इन्फेक्शन। तो इस वजह से जो है वो इसमें जो है वो आपने फिर सारी रीजंस को, यानी पूरा हाइपोथैलेमस से नीचे लेके यूट्रस तक जो 4 उसके एक्सिस हैं वो आपने सारे जो हैं वो इसमें सर्च करने होंगे, क्योंकि देन इट वुड बी अ मोर कॉम्प्लिकेटेड केस के इसमें आपको बज़ाहिर वजह कोई पता नहीं चलती, ना हिस्ट्री पे ना, और ना ही ये क्लिनिकली टैली कर रहा है विद मेनोपॉज।
मैडम जो पेशेंट अगर सेक्शन के बाद या अगर पेशेंट को सेक्शन के बाद वेजाइनल डिस्चार्ज एंड लोअर एब्डोमिनल पेन है, तो क्या उसमें पेशेंट को जैसे एशरमैन में एडहियंस बन के एमिनोरिया होता है, क्या उस तरह वैसे एडहियंस बन सकती हैं कि एंडोमेट्राइटिस के बाद एमिनोरिया हो जाए? रेयरली ये होता है, वरना ज्यादातर एशरमैन बनता है ओवर क्यूरेटाज की वजह से, क्योंकि उसमें बेजल एंडोमेट्रियम भी डैमेज हो जाती है और कोई बेजल एंडोमेट्रियम रहती नहीं, तो वहां पे स्कार टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेमेशन के नतीजे में अमूमन एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो जाती है, जैसे ट्यूबरकुलस एंडोमेट्रियम वाली एक चीज है, और कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कोई भी ऐसे कर सकती है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को भी। लेकिन क्रॉनिक इन्फेक्शन रियरली कैन कॉज एडहेजन्स इनसाइड द यूट्रस, या एशरमैन जरूरी नहीं होता कि एडहेजन्स ही बने। एशरमैन में ये भी होता है कि उसमें एंडोमेट्रियल एट्रोफी इस हद तक हो जाए कि उसके ग्लैंड्स रीजनरेट दोबारा से नहीं कर सकते, तो इस वजह से उसमें जो है वो ये दोनों चीजें हो सकती हैं। तो ये दोनों इस पेशेंट के स्कैन पे 3 फाइब्रॉइड्स थे, 2x3, 3x2 और 2x2। अब ये एमेनोरिया की वजह नहीं बन सकते, वो तो उसके एमेनोरिया की वजह। अब मुझे ये था कि जब इसे 10 साल से एमेनोरिया हो गया है तो इसे फाइब्रॉइड बन कैसे गए हैं? इसके तो फाइब्रॉइड बनने नहीं चाहिए इतने, हो सकता है पहले से ही हो लेवल पे, वो तो हो सकता है पहले से ही हो, या ये भी हो सकता है स्पॉटिंग नहीं कर रहे होंगे, स्पॉटिंग अब किसी और वजह से हो सकती है कि हो सकता है इसका सारा मसला ही एंडोमेट्रियम में हो। ईस्ट्रोजन तो फिर भी सिस्टम में चल रही है, तो इस फाइब्रॉइड तो होते हैं डिपेंडेंट, ठीक है, ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होते हैं फाइब्रॉइड की, ईस्ट्रोजन तक तो कोई मसला नहीं है। तो मसला हो सकता है सिर्फ एंडोमेट्रियम के अंदर ही हो, जो ब्लीड नहीं कर रही, जबकि बाकी साइकिल ठीक चल रहा है। थैंक यू मैडम। पॉसिबल जो है ना एक्सप्लेनेशन होगी, मेरा ख्याल है वहाँ पे हम बंद करते हैं। मैम एक क्वेश्चन है मेरा प्लीज, मैम एक क्वेश्चन प्लीज। मैम अगर मेनोपॉजल लेडी है और उसका जो है ना पायोमीटर आ रहा है, तो हमने पायोमीटर ड्रेन करने के बाद उसको, अगर स्टेप वाइज हम चलते हैं तो पायोमीटर ड्रेन करने के बाद हम इसको जो है एंटीबायोटिक देते हैं, तो मैम इसका क्यूरेटाज कब करेंगे? देखो क्यूरेटाज जब बेसिकली पायोमीटर के साथ भी क्यूरेटाज करना जरूरी होता है कि बाद दफा उसमें भी जो है वो मैलिग्नेंसी हो सकती है, लेकिन जब पायोमीटर पूरी तरह ड्रेन हो जाएगा, जब आप उसको एंटीबायोटिक कवर दे लोगे फॉर 5 to 7 डेज, तो उसके बाद फिर आप कर सकते हो। उसके तो ये डबल टाइम पे हम 2 टाइम उसको एनेस्थीसिया एक्सपोजर देंगे? हम पायोमीटर जो ट्रेन करेंगे अंडर एनेस्थीसिया ही करेंगे? कोई बात नहीं है कि क्योंकि पायोमीटर के दौरान में आप कैसे क्यूरेटाज कर सकते हो, नहीं कर सकते। पहले लेट इट ड्रेन, एंटीबायोटिक कवर कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आप इसकी वो करोगे। और शॉर्ट एनेस्थीसिया होता है, इतना लंबा एनेस्थीसिया तो होता भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हम इसके साथ अब एंड करते हैं, ठीक है। आप लोगों का एग्जाम कब है, कुछ पता नहीं चला? मैडम 5 जुलाई से स्टार्ट है। 5 जुलाई। अच्छा 5 जुलाई से, ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।